So, I have already explained its first part. Today, I will explain its second part. Okay, students? So, in first part, we have knew about Demosthenes' life. हमने फर्स्ट पार्ट में डेमोस्थेनीज की लाइफ के बारे में जाना, which problem he was facing in his life. He has several speech problem when he was born. जब वो born हुआ था तभी से उसे speech problem थी. His words were not clearly. उसके words clear नहीं थे. When he speak, his words was not clear. जब बोलता तो उसके words clear नहीं होते. He want to become a good orator. वो एक good orator बनना चाहता था. Why? Because when he was 7 years old, जब वो 7 साल का था, his father had died. उसके father की मृत्यु हो गई थी, died हो गए थे. Then those guardians bringing up him, जिन गार्जियंस ने उनको पाला, डेमोस्थेनीज को पाला, दे हैड टू इनजस्टिस टू हिम. उन्होंने उसके साथ इनजस्टिस किया. दे हैड टू इनजस्टिस टू हिम. उन्होंने उसके साथ इनजस्टिस किया. सो वो उस इनजस्टिस के खिलाफ लड़ना चाहता था. ही वांट टू फाइट अगेंस्ट दैट इनजस्टिस व्हिच done by his guardians. They spent all the money of Demosthenes. Demosthenes की जितनी भी money थी उनको spend कर दिया. Okay, so he was angry for that situation. वो बहुत गुस्सा था उस situation से. So when Callistratus came in Athens, when Callistratus came in Athens, जब Callistratus who was a good orator of Athens, जो Athens में एक good orators था और जब वो Athens में आते हैं, so he want to listen to him. वो उन्हें सुनना चाहता था. When he listened to him, then he was very inspired. वो जब उसने Callistratus की स्पीच को सुना तो वो काफी इंस्पायर्ड हुआ उनके स्पीच से. Then he decided to that day he will do hard work to become a good orator. उस दिन से उसने डिसाइड कर लिया कि वो एक हार्ड वर्क करेगा एक गुड ऑरेटर बनने के लिए. Even when he speech among the people listen to him. People make trust on him, ताकि वो जब लोगों के बीच में भी बोले तो लोग उस पर ट्रस्ट करें, बिलीव करें, उसको सुने. So he want to become a good orator. इसलिए वो एक good orator बनना चाहता था. He want to be a good orator चाहता था. Okay, so from that day he did more and more hard work. काफी hard work किया. He tried and tried again. उसने काफी try किया. Why? When he speech among the people, his voice, his words be clear. Okay, so now today we will continue with our chapter. Let me see what happened in next with Demosthenes, how he achieved his success in his life, how he became a good orator in Athens. Let me see. Let's start. Okay students, so as we were reading Unit 8 Demosthenes. In earlier class we have read about Demosthenes' life.
Demosthenes. Demosthenes was born with a severe speech problem. Okay. When he spoke, then he pauses and repeating the same sound. When he was 7 years old, his father had died. But Demosthenes' guardian was not careful and not loyal with him. So Demosthenes was very angry to his guardians. Guardians, it means who were bringing up to Demosthenes, because his father had died and they lost his money. They were not careful. So Demosthenes has decided to be a good orator. So now we will continue our chapter. Okay. So yesterday we have read till money left to recover. Today we will continue. Okay, now. Once more Demosthenes felt great sadness and anger. एक बार फिर से डेमोस्थनीज काफ़ी उदास हो गया और गुस्सा आ रहा था उसे. But he would not give up and went on to speak in the assembly. लेकिन उसने गिव अप नहीं किया और वो असेंबली में गया. एथेंस की जो असेंबली हुई थी, असेंबली इट मीन्स अ ग्रुप ऑफ पीपल मीटिंग फॉर अ पर्टिकुलर पर्सन, दैट इज़ कॉल्ड असेंबली. सो जब एथेंस के लोगों की असेंबली थी, वहाँ जाके उसने फिर से अपनी स्पीच दी. He knew it from the faces of the people around him and was filled with shame. वहाँ जो उसके चारों ओर लोग खड़े थे, उनके फेसेस से डेमोस्थनीज को ये रियलाइज़ हुआ कि वो उसके स्पीच में इंटरेस्टेड नहीं है. एंड ही वॉज फिल्ड विद सेम, और उसे काफ़ी शर्मिंदगी महसूस हुई, शर्मिंदगी का सामना करना पड़ा. सो दिस इज श्योरली द लास्ट टाइम आई स्पीक इन पब्लिक, ही थॉट सैडली. देन ही थॉट दैट टाइम दिस इज माई लास्ट स्पीच विच आई एम गिविंग इन पब्लिक. उसने सोच लिया कि ये मेरा लास्ट स्पीच होगा जो मैं पब्लिक के बीच में बोल रहा हूँ. He left the assembly and walked slowly down the road without realizing where he was going. उसने असेंबली को उसी समय छोड़ दिया और वो रोड की तरफ चल पड़ा. Without any thinking, what he was doing, where he was going, बिना कुछ सोचे कि वो क्या कर रहा है, वो कहाँ जा रहा है. Suddenly he felt someone touch his arm. तभी उसे ये फील हुआ कि किसी ने उसके आर्म को टच किया. Who was that? He had seen it was an old man who had heard him speak. वो कौन था? वो एक ओल्ड मैन था जिसने उसकी स्पीक को सुना था. He had seen how sad and disappointed Demosthenes was. उस ओल्ड मैन में देखा कि डेमोस्थनीज जो है वो कितना डिसअपॉइंटेड इट मीन्स भी होपलेस, उदास हो जाना, निराशाहीन हो जाना, होपलेस हो जाना. सो उसने देखा, उस ओल्ड मैन ने देखा कि डेमोस्थनीज काफ़ी डिसअपॉइंटेड हो गया था बिकॉज नो वन इंटरेस्टेड इन हिज स्पीच. किसी को भी इंटरेस्ट नहीं था उसकी स्पीच में, कोई सुनना नहीं चाहते थे. नो वन वॉन्टेड टू लिसन हिम. He looked at him keenly and praised him. Okay. उस ओल्ड मैन ने उसकी तरफ काफ़ी शार्प आई से, प्यार भरी नज़र होती है जब हम होपलेस हो जाते हैं, तो हमारे जो पेरेंट्स होते हैं, जो हमारे एल्डर्स होते हैं, हमें एनकरेज करने के लिए जब प्यार भरी नज़र से देखते हैं, सो दैट इज़ कॉल्ड कीनली. ओके, विद शार्प आइज. सो उस ओल्ड मैन ने काफ़ी शार्प आइज से उसकी तरफ देखा और उसे प्रेज्ड, इट मीन्स उसकी प्रशंसा की.
He told him that his speech reminded him of the great orator. उन्होंने उससे कहा कि उसकी जो स्पीच है वो ग्रेट ऑरेटर की याद दिलाता है. Who was the great orator? That was Pericles. Pericles, greatest orator ऑफ एथेंस. एथेंस का एक ग्रेटेस्ट ऑरेटर था पेरिक्लस, जिसकी याद डेमोस्थनीज की स्पीच ने उस ओल्ड मैन को दिला दी थी. हाउ कैन यू गिव अप सो ईजली डेमोस्थनीज, ही आस्क्ड. उस ओल्ड मैन ने कहा कि तुम इतनी जल्दी गिव अप कैसे कर सकते हो, कैसे हार मान सकते हो. गिव अप इट मीन्स हार मान जाना. सो डेमोस्थनीज फेल्ट एनकरेज एंड ट्राइड अगेन. जब आप अगेन एंड अगेन किसी चीज़ के लिए एफर्ट्स करते हो, ट्राई करते हो, एंड व्हेन यू फेल्योर अगेन एंड अगेन, देन दैट टाइम यू ऑल्सो होपलेस. ओके, आप उस समय होपलेस हो जाते हो. बट इफ़ एनी वन एनकरेज यू, मोटिवेट यू, देन यू थिंक वंस अगेन टू डू दैट थिंग्स. एक बार फिर से आप उस चीज़ को करने के लिए सोचते हो. सो दैट वॉज सेम हियर विद डेमोस्थनीज. डेमोस्थनीज के साथ भी ऐसा ही हुआ. जब उस ओल्ड मैन ने कहा कि तुम्हारी स्पीच जो है मुझे ग्रेट ऑरेटर पेरिक्लस की याद दिलाती है और तुम्हारी स्पीच बहुत ही अच्छी थी, तो जो डेमोस्थनीज होता है उसे एक बार फिर से साहस आता है और वो सोचता है कि मैं वंस अगेन आई विल ट्राई, मैं फिर से ट्राई करूँगा, फिर से स्पीच दूंगा एथेंस के पब्लिक के बीच में, लोगों के बीच में. सुना. बट ही फेल्ड अ सेकेंड टाइम. बट वो सेकेंड टाइम भी फेल हो गया. दिस टाइम ही फेल्ट द असेंबली हाइडिंग हिज फेस इन हिज क्लॉक. और जब वो सेकेंड टाइम फेल हो गया तो उसने एक क्लॉक, इट मीन्स कि एक क्लोथ होता है, कपड़ा होता है जिसमें वो कवर, जिस पे आप अपना फेस कवर कर सकते हो, उसमें एक कैप सी लगी हुई होती है. सो ही इज़ हाइडिंग हिज फेस इन क्लॉक. उसने उस क्लॉक में अपने फेस को छिपा लिया बिकॉज ही वॉज सेम. उसे शर्मिंदगी महसूस हो रही थी, सो इसलिए उसने अपने फेस को हाइड कर लिया उस क्लॉक में. एन एक्टर नेम्ड सटायरस हु न्यू हिम वेल फॉलोड हिम. ही न्यू दैट डेमोस्थनीज वुड बी इन डिस्पेयर. और एक एक्टर था उसी समय एथेंस में, सटायरस नाम था. ओके, उस एक्टर का नाम था सटायरस, जो उसे जानता था, डेमोस्थनीज को जानता था और डेमोस्थनीज को फॉलो करता था. वो जान गया था कि डेमोस्थनीज इस टाइम काफ़ी होपलेस है. Demosthenes did not hide his feeling from Satyrus. Demosthenes जो था उसने अपनी फीलिंग्स को सटायरस से नहीं छुपाया, वो छुपा नहीं पाया. और सेलर विद द फुलेस्ट स्टोरी विल मेक देम अपलॉड. एक सेलर जो अपने फुलेस्ट स्टोरी के थ्रू एक अपलॉड इट मीन्स क्लैप करवाएगा लोगों से. While if I tell them tales of the glorious deeds, मैं अगर अभी इसके हीरोइक एक्शंस या ग्रेट एक्शंस के बारे में बात करूँगा, ऑफ देयर ओन कंट्रीमैन दे डू नॉट केयर, वो केयर नहीं करेंगे. ही सेड बिटरली, उसने बिटरली कहा. बिटरली इट मीन्स विद अ फीलिंग दैट ही हैड फेल्ड एंड कुड नॉट सक्सीड. डेमोस्थनीज को ये फील हो रहा था कि वो फेल हो चुका था, वो सक्सीड नहीं हो पाया. तो उसका ऐसा मानना था कि एक अ सेलर विद अ फुलेस्ट स्टोरी, एक सेलर है जिसके पास एक फुलेस्ट सी स्टोरी है और वो स्टोरी विल मेक, उसकी जो फुलेस्ट सी स्टोरी है क्या वो लोगों के बीच में अपनी जगह बना पाएगी, क्या उसके लिए क्लैपिंग करवा पाएगी. While if I tell them tales of the glorious deeds of their own countrymen, वो अपने own countrymen के सामने अपनी जो heroic great and heroic actions के बारे में बात कर रहा था. They do not care, वो नहीं केयर करेंगे उसके इस great and heroic actions के बारे में. डेमोस्थनीज को ये रियलाइज़ हुआ. ट्रू डेमोस्थनीज आंसर्ड सटायरस. सटायरस ने ये आंसर किया, दैट्स ट्रू, यू आर ट्रू, हाँ तुम सही हो. बट आई विल टेल यू why it is so if you will recite to me some lines from one of our great poets. लेकिन सटायरस ने उसे कहा कि हाँ, लेकिन मैं तुम्हें बताऊंगा कि क्यों तुम फेल हुए. why you are failure once again.
Okay, why your speech couldn't affect to the Athens public? क्यों नहीं एथेंस के पब्लिक को इफेक्ट कर सकी तुम्हारी स्पीच? इफ़ यू विल रिसाइट टू मी सम लाइन्स फ्रॉम वन ऑफ आवर ग्रेट पोइट्स, अगर तुम हमारे जो ग्रेट पोइट्स हैं उनकी कुछ लाइन्स को रिसाइट करोगे, देन आई विल टेल यू वाई इट इज़ सो. सो देन डेमोस्थनीज रिसाइटेड सम पोम्स टू हिम, और तब डेमोस्थनीज ने कुछ पोम्स जो थे वो रिसाइट किए सटायरस के सामने. ओके. ही स्पोक द वर्ड्स करेक्टली बट हिज वॉइस वॉज डल. वो करेक्टली, उसके वर्ड्स करेक्ट थे बट उसकी वॉइस जो थी वो डल थी. देयर वॉज ऑकवर्डनेस इन द वे ही डिलीवर्ड द स्पीच. वो जो वर्ड्स बोल रहा था, ओके, देयर वॉज ऑकवर्डनेस इन द वे ही डिलीवर्ड द स्पीच. जिस वे में वो स्पीच को डिलीवर कर रहा था, दैट वॉज ऑकवर्डनेस. ऑकवर्डनेस इट मीन्स विच स्पीच वॉज डिलीवर्ड इन पुअर मैनर and with a difficulty. Why? Because Demosthenes didn't have to skill or confidence, क्योंकि Demosthenes की स्पीकिंग स्किल्स अच्छी नहीं थी और उसको कॉन्फिडेंस नहीं था. So his speech delivered awkwardness. When Demosthenes finished, Satyrus repeated the lines back to him. जब Demosthenes ने फिनिश कर लिया तो Satyrus ने उसकी बोली हुई लाइंस को फिर से रिपीट किया. किसने? Satyrus ने. Demosthenes की जो बोली हुई लाइंस थी उसको फिर से उसने रिपीट किया. Demosthenes stood still with surprise. सो डेमोस्थनीज स्टूड स्टिल विद सरप्राइज. डेमोस्थनीज काफ़ी सरप्राइज हो गया. सरप्राइजिंगली वो स्टूड खड़ा रह गया. ही कुड नॉट बिलीव दैट दे वर द सेम लाइन्स. उसे बिलीव नहीं हुआ कि क्या वह वही लाइन्स हैं जो मैंने बोली है. द एक्टर्स आइज फ्लैश्ड, हिज वॉइस रोज एंड फेल. एक्टर्स की जो आइज़ थी वो फ्लैश हो गई, उसकी वॉइस भी रोज हो गई थी एंड फेल. एंड हिज बॉडी स्वेड एज ही स्पोक. और उसकी बॉडी जो थी वो स्वेड कर रही थी. स्वेड इट मीन्स व्हेन यू स्पीक समथिंग, व्हेन यू गिव अ स्पीच and then your body moves according to the speech, then your body makes act according to the speech, so that is called swayed. Okay, so the actor's eyes flashed, his voice rose and fell, his body swayed as he spoke. ओके जैसा उसने कि बोला, आपने जो उसकी स्पीच थी उसकी अकॉर्डिंग उसकी बॉडी लैंग्वेज थी. तो जब आप एक स्पीच देते हो कि तो इसका मतलब ये नहीं है कि ओनली यू रीड दैट स्पीच. आपको केवल रीड नहीं करना था. योर बॉडी जेस्चर्स, योर बॉडी एक्सप्रेशंस इज ऑल्सो मस्ट. ओके, नाउ Demosthenes understood why his speeches did not इंटरेस्ट द एथेनियंस. डेमोस्थनीज समझ गया कि क्यों इसकी स्पीच जो है वो एथेनियंस को इंटरेस्टिंग नहीं लगती. ही रियलाइज्ड दैट ही मस्ट नॉट ओनली रीड और रिसाइट देम बट ऑल्सो एक्ट देम. उसने रियलाइज़ किया कि वो उसे केवल अपनी स्पीच को रीड या फिर रिसाइट नहीं करना चाहिए. अकॉर्डिंग टू स्पीच ही हैज़ टू एक्ट. उसे अपने स्पीच के अकॉर्डिंग अपने बॉडी जेस्चर्स, बॉडी एक्सप्रेशंस पे भी ध्यान देना चाहिए. सो नाउ फ्रॉम दैट डे ऑन डेमोस्थनीज बिगिन टू वर्क इन अ डिफरेंट वे. और उस दिन से डेमोस्थनीज ने डिफरेंट वे में वर्क करना स्टार्ट कर दिया अपने वॉइस को इम्प्रूव करने के लिए, अपने बॉडी लैंग्वेज को इम्प्रूव करने के लिए. ही कन्वर्टेड वन ऑफ द सेलर्स ऑफ हिज हाउस इनटू अ स्टडी. उसने अपने घर में एक सेलर बना लिया था. सेलर्स इट मीन्स अंडरग्राउंड रूम्स यूज टू स्टोरिंग थिंग्स. सो उसने एक सेलर बना लिया था, बट ये सेलर इसने बनाई थी अपनी स्टडी के लिए. देयर ही प्रैक्टिस्ड अनडिस्टर्ब. वहाँ पे वो प्रैक्टिस करता था, वहाँ कोई भी उसे डिस्टर्ब नहीं करता था. सो देयर ही प्रैक्टिस्ड अनडिस्टर्ब. ही
he often lived in his study for 2 or 3 months at a stretch. वो लगभग 2-3 महीनों तक उस सेलर, उस अंडरग्राउंड रूम में रहा और स्टडी करता रहा, उस पे वर्क करता रहा ताकि उसकी वॉइस क्लियर हो, उसके वर्ड्स क्लियर निकले. They say he went to the seashore and shouted his speech with pebbles in his mouth. उन्होंने उससे कहा कि उसे शीशोर यानी कि समुद्र के किनारे जाना चाहिए. वो समुद्र के किनारे गया और उसने अपने मुंह के अंदर मुंह के अंदर पेबल्स इट मीन्स कि छोटे छोटे जो पत्थर होते हैं, दैट इज़ कॉल्ड पेबल्स. उसने अपने माउथ के अंदर पेबल्स को रखकर अपनी स्पीच को बोलना स्टार्ट किया, प्रैक्टिस किया. So when he spoke without the stones, the words came through loud and clear. और उसके बाद जब उसने बिना स्टोन के स्पीच देना स्टार्ट किया, so his words came through loud and clear, और उसकी आवाज़ loud और clear निकली. He watched himself in the mirror as he spoke to improve his expressions, gestures and action. उसने अपने आप को मिरर में देखा जब वो बोल रहा था, तो उसकी स्पीचेस में इम्प्रूवमेंट थी, उसके एक्सप्रेशंस, बॉडी जेस्चर्स एंड एक्शंस, उन सभी में इम्प्रूवमेंट थी. जेस्चर इट मीन्स अ मूवमेंट ऑफ द हैंड्स और हेड वाइल गिविंग ए स्पीच. जब हम अपने हेड और हेड का यूज़ करते हैं, मूव करते हैं अकॉर्डिंग टू द स्पीच, दैट इज़ कॉल्ड जेस्चर्स. सो नाउ he practiced speaking as he walked or ran along the seashore. इसके अलावा उसने जब वो seashore यानी समुद्र के किनारे वॉक करता, रन करता, तब भी वो प्रैक्टिस करता बोलने की. He raised his voice so that he could be heard over the roaring waves. उसने अपनी वॉइस को इतनी लाउड किया ताकि वो जो समुद्र की लहरें हैं, रोरिंग वेव्स हैं, उनकी आवाज़ भी उसको सुनाई ना दे, उससे भी लाउड वॉइस हो उसकी. He also practiced speaking as he ran up a hill. इसके अलावा उसने जब वो पहाड़ियों पे चढ़ता, हिल पे चढ़ता, दौड़ता, तब भी वो प्रैक्टिस करता बोलने की. All these trained his breath, voice and tone. ये इन सारी चीज़ों ने उसकी ब्रीथ को, उसके वॉइस को और उसके टोन को. टोन इट मीन्स द स्ट्रेंथ एंड क्वालिटी ऑफ द वॉइस. इन सभी को इम्प्रूव किया, ट्रेन किया. डेमोस्थनीज स्पीचेस वर नाउ फिल्ड विद ड्रामा एंड पर्पस. अब जब डेमोस्थनीज स्पीच देता तो उसके स्पीचेस में ड्रामा होते, एक पर्पस होता. ड्रामा इट मीन्स एक्साइटमेंट, इट मीन्स हिज स्पीचेस वर नॉट डल नाउ. पीपल वर इंटरेस्टेड इन हिज स्पीच एंड हैव अ पर्पस ऑल्सो इन हिज स्पीच. एक पर्पस होता उसकी स्पीच में, उद्देश्य होता. ही वॉज नो लॉन्गर द बॉय हु वॉज शाय एंड स्पोक विद अ स्टैमर. अब वो लड़का नहीं रहा जो शाय था, जिसे बोलते वक्त प्रॉब्लम होती थी, वो जो अपने वर्ड्स को रिपीट करता था. सो स्टूडेंट्स, आई होप यू मस्ट अंडरस्टूड दिस चैप्टर एंड यू लर्न ऑल्सो वन थिंग, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन perfect. If you try again and do hard work and make a lots of efforts on your work, then you get success in your life. You can achieve success in your life. You will be a great person, just like as Demosthenes. Demosthenes decided to be a good orator and he did lots of efforts. He did hard work. And one day, he became a good orator of Athens. So goodbye. Have a nice day. So students, I hope you must have understood this chapter and you must have enjoyed with this chapter. So, in this chapter, you have to know how Demosthenes become a good orator. He did hard work in his life to achieve his success. So this chapter gives lesson to us. When
want to be a great person in our life, if we want to achieve success in our life, so don't give up. Try again and again and do hard work. ट्राई करना है, हमें बार बार ट्राई करनी है उस चीज़ों को और हार्ड वर्क करना है, देन यू विल गेट योर सक्सेस, देन यू विल गेट योर सक्सेस श्योरली, इट इज मस्ट. सो हार्ड वर्क, डिजायर and patience.